Okay. So in today's lecture, what I'm going to do is, because we have already started our lexical processing in yesterday's lecture, I'm going to continue what we were discussing yesterday. We left around bag of words. That was the last topic as a basic lexical processing. Today, along with that basic, I will also complete the advanced lexical processing. So this first part will be completed in today's lecture only. I will try to complete all of it. And then from next lecture onwards, we will be continuing with the syntactic processing. Let me go to the bag of words slide. So all these things we have covered yesterday. Yeah, so this was the last topic. We had discussed bag of words representation as the last topic yesterday. So today what I'm going to do is we are going to continue and we will discuss that what are the first drawbacks of bag of words. So we have already seen yesterday that there are two types of ways that you can fill this matrix. You can either fill the cell with the frequency of the word कि कितनी बार आया है, right? And versus you can either put it as 1 or 0 based on the presence of it. So we have also seen the code yesterday around the bag of words. uh, did we see the code of bag of words or not? I think I had discussed this thing, but code I guess शायद cover नहीं हुआ था bag of words का. Can anyone confirm? Then I will show you the code also. So let me quickly. एक बार आप दिखा दो प्लीज को. हाँ, मैं वही करने लगा हूँ so that थोड़ा clarity हो जाएगा. So there are lots of things that we are going to cover today. We are at this code number 4, bag of words. So bag of words में क्या होता है, because we discussed yesterday कि भाई वो sentences जैसे input ले रहा था, RRR is a great movie and everything, and then it converted all of it, उसने lower case में किया, उसने tokenization किया, right? And फिर उसको stop words जो नहीं थे stop words तो उनको join करके एक sentence output दे दिया. So all these sentences that were given as the input, this would be converted to this part. जैसे वो बता देगा that this is how the vectorizer looks like at based on these locations, because there were 3 documents, so 0 1 and 2 will be the 3 rows and the locations will be around 10 or 11. So based on that उसने 1 वाले show कर दिए. And if you want to show the bag of words as an array, so this is how it looks like. So if you make a bag of words array जो हमने जैसे कल देखा था, so all that kind of things can be shown like this. अगर आप 2 array कर दोगे, जो हमने ऊपर बैग ऑफ वर्ड्स किया था उसी का एज ए एरे शो हो गया. नाउ इफ आई वांट टू डू इट फॉर द स्पैम डेटा सेट, राइट? स्पैम डेटा सेट का आई हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज द सीएसवी फाइल, मैंने कल दिखाया भी था, जिसमें देयर वर स्पैम एंड हैम मैसेजेस, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने बोला था कि दैट वी विल बी ट्राइंग टू डू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पैम एंड हैम. सो मैंने डेटा सेट रीड किया एंड फॉर दैट इसको एनकोडिंग मैंने ढूंढा कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं. देयर वर सम इश्यूज बट आई सॉल्व्ड इट एंड easily we can now use this file, and this file is also available. ये वाला फाइल अगर आपको यूज करना है, it is available on this page. मैंने यहाँ पे डाल दिया था, ये रहा sample SMS spam collection. So I have uploaded this file. You can directly use the CSV file in your code, and then after that you can also look at the first 100 rows. लेबल प्रिंट करवा लो एंड मैसेजेस प्रिंट करवा लो, राइट? तो 150 है, जितना भी रोज है करवा सकते हो. सो दिस इज हाउ द डेटा सेट लुक्स लाइक. that label मेरे ये रहे spam and ham, and these are the messages on which we need to do some kind of processing to get the job done for classification. Then we will extract the messages जो भी है उसमें से हमने फिर sms dot message करके spam dot message करके we got all the messages. And now because we want to do some processing on it, मुझे उसको जैसे ये कैपिटल लेटर है इसको स्मॉल करना है या एक्सक्लेमेशन है उसको रिमूव करना है. सो ऑल दोस काइंड ऑफ प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स वी नीड टू डू. So to do that, what we can do is we can simply call our function preprocess message, and this will be done. So most of the things have been taken care of. अभी इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह है, बट पंचुएशन का अभी इसमें रिमूव नहीं करा, बट वी हैव कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर केस एंड एवरीथिंग. Then we are transforming it into this vectorizer form, and we can look at as this thing. There are 639 columns and there are 100 rows. तो based on that हमने bag of words model बना लिया जो हमने ऊपर data इकट्ठा किया था.
तो उसने बैग ऑफ वर्ड्स हमें ये बना के दे दिया जिसमें 0101 होगा. And if you want to print the feature names, you can print it as get feature names. All the feature names are being printed. Obviously, कुछ का सेंस बन रहा है, कुछ का नहीं बन रहा. So some kind of keywords are there like this. तो बहुत क्लियर नहीं है, मतलब there are few issues in this. But then a lot of duplicate tokens are there. अगर आप इसमें देखोगे जैसे विन भी है, विनर भी है, तो बात तो विनिंग की ही हो रही है. विन है चाहे विनर है, जैसे रिप्लाई है रिप्लाइंग है, वांट एंड वांटेड है. देयर आर लॉट्स ऑफ डुप्लीकेसीज इन दिस थिंग. तो इस डुप्लीकेसी को ठीक करने के लिए वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स. लेट्स लुक एट दोज थिंग्स. यहाँ पे वही डिस्कस हो रहा है दैट ऊपर क्या लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ इज दैट देयर आर सम रिडंडेंसीज, कुछ विन विनर ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स थे जो डुप्लीकेट थे, विच विल एक्चुअली बी कर्स ऑफ डिमेंशनैलिटी. ये फीचर्स ज़्यादा होंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा एंड ऑल दोज थिंग्स, ओवर फिटिंग हो रही है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो रहा होता है. सो वी नीड टू इम्प्रूव दोज थिंग्स. Whatever dimensionality problem we have two options as of now. We are going to discuss about stemming and lemmatization. I hope you know the basics, but still I'm going to discuss it in detail. Stemming क्या होता है, that we are actually reducing that thing into the root word. It makes sure that different variations of word warm, warmer, warming, warmed are represented as a single token warm. ठीक है. And limitation में it's a different thing, but अभी देखते हैं इसको क्या होता है. But these two things will be very helpful for removing the redundant tokens. For example, stemming की बात कर लेते हैं. stemming में inflections नाम का एक word होता है, या फिर आप इसको variants भी कह सकते हो, morphological variants. इसका मतलब है कि हमारा root word gain है, but gained है, gaining, gainful, or these things can be reduced to the root word of gain. ठीक है. And similarly there is this algorithm called Porter stemmer. तो इसमें अगर आप एस एस ई एस आ रहा है हमारे वर्ड के एंड में, तो एस एस से रिप्लेस कर दोगे. सो वही चीज यहाँ पे शो करी है. आई ई एस को आई से कर दोगे, एस एस वाले को एज इट इज छोड़ दोगे, सिर्फ एस है तो एस हटा दोगे. सो वही चीज यहाँ पे वी कैन सी. कैट्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू कैट, कैरस इज कैरस ओनली, पोनीज इज पोनी, टी आई ई एस इज टी आई, कैरसेस इज कैरस. तो ये चीज is possible, ये stemming होती है, and we are actually discussing about the Porter stemmer algorithm. Then stemming में it is rule based. Obviously ये rules ही तो हैं, मतलब ऐसे करके कुछ rules हैं, तभी उसके basis पे we are trying to reduce it to the root word. So it's rule based, and we just chop off the suffix of a word to get its root form. So for example, the driver is racing in boss car. The words driver and racing will be converted to their root by doing this thing, and driver wala will be drive, racing will be RAC. तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ दिक्कतें आ रही हैं. एंड फॉर एग्जांपल ड्राइव है, ड्राइविंग है. सो इवन द कॉन्टेक्स्ट इशू भी होता है, मतलब ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी हैव फ्यू इश्यूज विद स्टेमिंग आल्सो. तो बट वी आर गोइंग टू लुक इनटू दीज टू. पोर्टर स्टेमर एंड स्नोबॉल स्टेमर आर द टू डिफरेंट वेरिएंट्स, काफी पुराने हैं बट दे आर हेल्पफुल इन स्टेमिंग. तो इसका एक बार कोड भी देख लेते हैं. आई वांट टू शो दैट हाउ दिस स्टेमिंग वर्क्स, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन. सो विद इन दिस मैंने यहाँ पे स्टेमिंग वाला भी डाला था कोड, ये रहा 5th नंबर पे. So within stemming, we are actually importing the Porter stemmer and Snowball stemmer, and we need to download some this few libraries like this PUNKT. So we need to get this thing done, and then if we are, let's say, giving input like this, जो हमें as it is यहाँ पे हमने print करवा दिया, very orderly and methodical. He looked with a hand on each knee. तो मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है. I don't know the meaning of it. मुझे ये text मिला and I have put it as it is. It looks like a poem है या क्या है पता नहीं, but it's not making much sense. But we need to only focus on the stemming part. We need to convert few words. जैसे ये pitted है तो pit बन जाएगा. अगर कोई और दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे looked है तो look बन जाएगा, flapped है तो flap बन जाएगा. तो ऐसा कुछ करना है. Right. Now let's first convert it into tokenization form and lower case it. तो उसको सारे को convert कर लिया. Then अगर हम पोर्टर स्टेमर लगाएंगे, तो पोर्टर स्टेमर लगाने के बाद उसने एज इट इज उसको छोटा कर दिया. जैसे यहाँ पे देखो, फ्लैप्ड था, फ्लैप्ड वाला फ्लैप बन गया, लुक्ड वाला लुक बन गया. तो ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स का कुछ कुछ का मीनिंग चेंज भी हो गया. मतलब जैसे ये लेविटी था,
लेविटी वाला वाज वाई, तो वाई को आई कर दिया गया है, लॉन्जिटिविटी को लॉन्जेव कर दिया गया है। तो पोर्टर स्टेमर का ऐसा काम हो रहा है दैट वी आर एक्चुअली स्टेमिंग द वर्ड्स टू द रूट फॉर्म। स्नोबॉल स्टैमर ने भी ऐसे ही कुछ किया, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने वो डाटा फ्रेम वगैरह जैसे कर दिया। नाउ वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग ओनली दोज रोज जहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, जहाँ पे दे आर नॉट इक्वल। तो इफ इट इज नॉट इक्वल टू द टोकन, जहां जहां पे चेंज हुआ वो सब हमने प्रिंट करवा दिया। दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नॉट इन द सॉर्टेड मैनर 0 1 3 5। तो वो चीज़ है। सो वेरी को वी ई आर आई दोनों ने करा, ऑर्डरली को इसको ऑर्डर किया, स्नोबॉल वाज बेटर। मैथडिकल को मेथड मेथड दोनों ने किया, लुक को लुक किया। ऐसे ही जैसे हिज को हिज किया, इसने मतलब बेटर रखा, स्नोबॉल वाज बेटर, हाई इज नॉट सेम एज हिज, राइट। सो दोनों का कंपैरिजन भी हो गया एंड स्टेमिंग का मतलब समझ में आ गया दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट। एंड देन नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेमिटेशन। देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड लेमा। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स टू इट्स डिक्शनरी फॉर्म। लेमिटेशन का ना एक ड्रॉबैक है दैट इट वर्क्स वेल ऑन द करेक्ट स्पेलिंग्स ओनली। तो तभी ये डिक्शनरी फॉर्म जैसे लिखा है कि हम डिक्शनरी फॉर्म में उसको लेके आ रहे हैं। वर्डनेट इज ए लेक्सिकल डेटाबेस। ये दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। उन्होंने ये डेटाबेस बना दी है, हैंडमेड है, एंड दे हैव ट्राइड टू कीप लॉट्स ऑफ थिंग्स। मतलब उन्होंने ये डिक्शनरी बना दिया हमारे लिए, इट्स ए डेटाबेस जिसको हम मतलब कर सकते हैं मैनेज। इफ वी हैव सम वर्ड्स वी कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस थिंग। सो कंप्यूटेशनली ये मोर एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव टू लुक इनटू द डेटाबेस बार बार। तो ड्राइविंग ड्रोव ड्रिवन, तो इसको सबको ड्राइव ही करेगा, ये लिमिटेशन का फायदा है। अदरवाइज ड्रॉव वाला ड्राइव नहीं बन सकता डायरेक्टली स्टेमिंग वाले टेक्निक से। फीट विल बी कन्वर्टेड इनटू फुट, ठीक है, तो मतलब उसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। तो ये भी फीट वाले का फुट भी स्टेमिंग वाला नहीं कर पाएगा, लिमिटेशन कर पा रहा है। सो दिस इज मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक and perhaps more intelligent in the sense that it doesn't chop off. Instead, it will take the input and searches the base word recursively through the dictionary. तो मतलब इसको हम lemma बोलते हैं. This base word is called lemma. And words such as feet, drove, rose, bought can't be reduced to their correct base form using stemmer. That's why we need some lemmatizers like this. So nevertheless, you may sometime find yourself confused in whether to use. अब दोनों में से कौन से use करना है इसके बारे में बात हो रही है। सो स्टेमर इज ए रूल बेस्ड टेक्निक एंड हेंस इट इज मच फास्टर, क्योंकि रूल्स बने बनाए हैं एज इट इज, उसको वन बाय वन चेक करेगा रूल के बेसिस पे एंड इट कैन कन्वर्ट इट इनटू द वट एवर रूट फॉर्म इज। बट लिमिटेशन थोड़ा स्लो है बिकॉज इसमें वी आर एक्चुअली ऑल्सो टैगिंग आर वर्ड्स एज पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स, नाउन वर्ब एडजेक्टिव, तो ऐसा करके काफी कुछ इन्होंने करा हुआ है बैक एंड पे। सो बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन के नाउन है, वर्ब एडजेक्टिव है, ऑल दीज थिंग्स make the lematizer slower. Now, there are often cases that when the POS tagger itself is quite inaccurate. अगर किसी बंदे ने जैसे टैगिंग करते हुए खुद ही गलती कर दी और तुम्हें दिख रहा है कि मतलब यार ये तो गलत ही है, then you can go for stammer rather than lematizer. Otherwise, POS tags are in very detailed manner. उसमें I will show you the code, but इसमें mainly क्या होता है that they have, let's say एक word है drive, तो drive या फिर कोई कैन है या कोई भी ऐसा वर्ड है, दे हैव डिस्कस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ नाउन एज फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इवन डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इट। वो काफी डिटेल्ड मैनर में वर्ड नेट वाला बना हुआ है। यू कैन सर्च अबाउट इट एंड लुक इनटू इट। इफ वी लुक एट द कोड ऑफ लेमिटेशन, लेट्स क्विकली go to the code. This one. So within limitation, we are trying to just bring it to the root form, but using the WordNet limitizer. So this is a library that we need to look into. तो अगर हम इसको import कर लेंगे and we want to convert our words into the stemming, मतलब stemming भी करनी है, उसका lemma भी बनाना है. So this thing can be done through WordNet limitizer and वैसी same sentences डाल देते हैं and we are actually doing it through WordNet limitizer this time.
सो यहाँ पे हम उसको अगर कंपेयर करना चाहें, जैसे यहाँ पे पोर्टर स्टेमर वाला भी कर दिया जो पीछे था, एंड ऊपर लेमिटेशन तो हो ही रखा है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। वेरी वाला इज वेरी ओनली विद लेमेटाइज्ड, ऑर्डरली इज ऑर्डरली ओनली, मेथोडोलॉजिकल इज मेथड, तो यहाँ पे ये बेटर है स्टेम्ड वाला। लुक्ड वाले केस में लुक्ड ही रखा तो ऑब्वियसली ये वाला बेटर है। टिकिंग वाले में फिर से ये वाला बेटर है, तो हिज वाले में ये वाला बेटर है। तो ऐसे करके अलग अलग है, मतलब फ्लैप्ड वाले में फ्लैप बेटर है। तो मतलब देयर इज अ डिफरेंस, वी नीड टू वी कैन कंपेयर दिस थिंग, स्टेम्ड एंड लेमेटाइज वाला दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। ऑब्वियसली डिक्शनरी काफी छोटा है यहाँ पे, एंड वी हैव अदर थिंग्स आल्सो यहाँ पे, जैसे हो सकता है किसी के स्पेलिंग ही गलत हो, राइट, लेट्स से किसी ने चैटिंग करी हुई है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स में वैसे केसेस में स्टेमिंग यूज कर लो rather देन यूजिंग द limitation, क्योंकि limitation का रूल है डिक्शनरी वाला। नाउ लेट्स कंपेयर द स्पीड ऑफ बोथ टेक्निक्स। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। वी विल यूज दैट सेम एलिस एडवेंचर वाला, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड वाला बुक which I showed you yesterday also. We were discussing around this thing. So if I scroll down, just a second. ये गिटहब का थोड़ा सा नुकसान है, प्रिंट हो गया तो वो पूरी बुक उसने छाप दी नीचे तक। सो नाउ if we look at the wordnet lematizer and if we want to lematize having, तो उसका यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं टाइम का। ठीक है, एलिस डॉट टेक्स्ट वाला जैसे है, तो वी हैव दिस थिंग। लेमटाइज वाले केस में वी आर टेकिंग 347 मिली सेकेंड्स, बट स्टेमिंग वाले केस में वी आर टेकिंग 973 मिली सेकेंड्स, तो 3 गुना टाइम लग रहा है इन स्टेमिंग। बट ऑब्वियसली इस केस में लेमेटाइजिंग इज फास्टर, बिकॉज यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच वाली चीज नहीं है। ठीक है, बट स्टेमिंग यहाँ पे मतलब इसलिए स्लो है कंपैरेटिवली क्योंकि हमने लेमेटाइजिंग अच्छे से करी नहीं है। यहाँ पे हमने उसके नाउन वर्ब वो सब चेक ही नहीं करवाया, इसमें हमारा मतलब उतना डिटेल में हमने करा नहीं चेकिंग। इफ वी आर चेकिंग द पीओएस टैग, तो उस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड पीओएस टैग अगर आप उसमें पास करवाओगे देन ऑब्वियसली stemming will be faster. Now let's go back to the this thing. So यहाँ पे लिखा भी हुआ है that you observed that in this case ये वाला fast है, तो PO stack की बात करिए जो मैंने अभी बताया। Now let's look at the final bag of words representation where we have already discussed that we can plot some frequencies and we can remove the stop words and everything like that. But then उसके बाद tokenization हो रहा है, we are having the stemming limitation, तो ये चार चीजें हैं। नाउ लेट्स क्रिएट बैग ऑफ वर्ड्स अगेन। ठीक है, बट दिस टाइम हम ये सब की हेल्प लेंगे, स्टेमिंग लिमिटेशन भी करवाएंगे बैग ऑफ वर्ड्स के साथ। सो लेट्स लुक एट द, आई थिंक कोड भी आएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कोड का लिंक नहीं डाला क्या, बट आई हैव अपलोडेड द कोड आई गेस। ये कंप्लीट फाइनल बैग ऑफ वर्ड्स वाले का ना, यहाँ पे मैंने कोड डाला था कल। सो आई विल टेक यू टू दैट कोड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये वाला था। I will add this in the presentation also, this link. तो फाइनल बैग ऑफ वर्ड्स वाले में हम वो सब करेंगे जो जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट लेट्स से वी हैव सम स्टॉप वर्ड्स, वी आर यूजिंग द वर्ड नेट लिमिटेशन आल्सो। तो इसको स्क्रीन को क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है, तो let's say that we have these sentences and based on that we are trying to get the bag of words। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया था। Now if we want to create the bag of words on the spam data set, वही सेम डेटा सेट उठाओ, लेबल और मैसेज हमारे पास हैं, बट नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू सम टोकनाइजेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। स्टेमिंग एंड लिमिटेशन ये करना था मेनली, टोकनाइजेशन तो चलो हो ही रहा था पहले भी, बट दिस टाइम वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग द स्टेमिंग एंड लिमिटाइजिंग पार्ट। सो अगर आप वो सब करोगे जिसमें आप लोअर केस कर रहे हो, टोकनाइज कर रहे हो, एंड देन यू आर एक्चुअली ये कर रहे हो कि अगर आपका वो आता है तो आप उसको स्टेमिंग कर दो, या फिर अगर उसमें डायरेक्टली वो नहीं है, अगर हमारे पास साथ में पीओएस टैग आ रहा है, ये वी वाली चीज इज वर्ब, तो अगर ये वर्ब वाला है तो वी कैन डू द लिमिटेशन एंड वी कैन एक्चुअली कंबाइन दो सेंटेंसेस। तो बेस्ड ऑन दैट दिस इज न्यू बैग ऑफ वर्ड्स, एंड यहाँ पे वी आर एक्चुअली ऑल्सो लुकिंग एट द गेटिंग फीचर नेम्स, जो जो मेरे फीचर नेम्स हैं वो सब आ गए यहाँ पे। एंड दिस टाइम 360 टोकन्स आए हैं आफ्टर स्टेमिंग द मैसेजेस, इनिशियली 382 थे। तो जो हमारा रेपिटेशन हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है जस्ट बाय स्टेमिंग, स्टेमिंग वाला पार्ट।
नाउ इफ वी डू सम लेमेटाइजिंग, लेमेटाइजिंग से भी कंपेयर कर लेते हैं। लेमेटाइजिंग से क्या हुआ है, यहाँ पे 364 tokens after lemmatizing the messages as compared to 382, but on the other hand stammer ने 360 किया था। बिकॉज दिस डाटा इज नॉट वेरी क्लीन, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। अदरवाइज अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स ना होती तो लेमिटेशन वुड हैव डन बेटर। यहाँ पे जैसे देखो विन और विनर वाले पे तो कोई असर ही नहीं हुआ किसी का, अदरवाइज विनर कुड हैव बीन कन्वर्टेड टू विन ओनली। तो यहाँ पे मे बी नॉइजी डाटा है, दैट्स व्हाई इट डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल। Now let's talk about TF-IDF. So this is something we need to discuss. We have already seen it. आपने ML में पढ़ा हुआ है. So but still I will discuss this in detail. TF-IDF is term frequency inverse document frequency representation. And in this what we are trying to do is यहाँ पे we have this model. अगर हमने ये बनाना है तो we have to convert I mean we need to find the यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देन यू विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास वही सेंटेंसेस हैं दैट RRR इज ए ग्रेट मूवी एंड देन राजा मौली हैज मेड इट। अगर मैंने ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं एंड दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी पुट इन द कोड, तो मैं कोड में भी डिस्कस करूंगा, बट आई वांट टू क्विकली discuss this formula here. So suppose we have some sentence जैसे document 1 है and we have sentence as RRR is a great movie, ठीक है, एंड देन राजमौली हैज मेड इट, तो ऐसे करके मेड इट तक हो गया, ये डॉक्यूमेंट 1 है। डॉक्यूमेंट 2 कैन बी द सक्सेस ऑफ द सॉन्ग डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक, एंड थर्ड सेंटेंस कैन बी मे बी देयर इज अ न्यू मूवी रिलीजिंग दिस वीकेंड। तो ऐसा कुछ करके 3 सेंटेंसेस है सपोज। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे उसमें अगर मेरा जैसे सेंटेंसेस थे, तो इफ आई वांट टू फिल दिस पार्ट, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं चेक करूँगा कि सपोज मेरा TF वाला पार्ट मैंने करना है, तो मूवी वाला जो है इन माय डॉक्यूमेंट 1 कितनी बार आया। सो दैट सेंटेंस वाज RRR इज ए ग्रेट मूवी, राजामौली हैज मेड इट। तो मूवी सिर्फ एक ही बार आया था, और टोटल लेट्स से मेरे पास 5 बार मूवी वर्ड यूज हुआ था इन थ्रू आउट द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, टोटल टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट D, ठीक है। नो नॉट 5 टाइम्स मूवी, बट टोटल सेंटेंस टोटल वर्ड्स मेरे 5 थे, बिकॉज अगर मैं बोलूँ RRR इज ए ग्रेट मूवी तो उसमें से ये दो तो कट जाएंगे, राइट। राजामौली हैज मेड इट, तो उसमें से भी मतलब राजामौली हैज कर जाएगा, मेड रह जाएगा। तो मेड रह गया, राजामौली रह गया, RRR है गिवन, ग्रेट है, मूवी है, ठीक है। टोटल 5 है, टोटल देयर आर 5 वर्ड्स। सो वी कैन फिल दिस TF लाइक दिस, कि मेरे आफ्टर रिमूविंग ऑल द स्टॉप वर्ड्स मेरे कितने वर्ड्स हैं, तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली अगर इफ माई मूवी इज कमिंग इन टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरे 3 है एंड मूवी मेरे 2 ही सेंटेंसेस में आ रहे हैं, तो इस केस में मैं log ऑफ 3/2 करूंगा। तो दिस इज माई IDF एंड दिस विल स्टे कंसिस्टेंट यहाँ पे, तभी यहाँ पे कॉमा D नहीं है। कॉमा D इसीलिए नहीं है बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट डॉक्यूमेंट एंड मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितनों में भी वो वर्ड है। सपोज मूवी मेरा फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में था, तो ये 3/2 तो होना ही था बिकॉज देयर वर टोटल 3 सेंटेंस। तो TF-IDF का एक बेसिक सा आइडिया ये था, एंड लेट्स लुक एट द code for it. I have also made the code for TF-IDF, this one. So TF-IDF में ये मैंने यहाँ पे sentences लिखे थे that RRR is a great movie, Rajamouli has made it, and then the success of the song depends on the music. There is a new movie releasing this week. तो ऐसे करके 3 sentences हैं, ठीक है। And I want to use TF-IDF vectorizer. तो मैंने क्या किया, वही सब उसका रिमूव करके लोअर केस में करके देन आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस TF-IDF vectorizer। तो उसने मेरे को जहाँ जहाँ पे वैल्यू 0 नहीं थी वो वाले सारे प्रिंट करके दे दिए कि भाई इस लोकेशन पे ये वैल्यूज आ रहे हैं, TF-IDF की वैल्यूज जो TF और IDF को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। देन ऑब्वियसली यू कैन सी इट एज ए एरे, वही सेम चीज 2 एरे कर दोगे तो यू कैन सी दैट देयर आर टोटल 12 वैल्यूज हियर। 12 है नहीं 14 आई गेस, 1 2 3 4 5 6, हाँ टोटल देयर आर 14 वैल्यूज। तो टोटल देयर वर 14 वर्ड्स, और उसी का इफ वी वांट टू प्रिंट द गेट फीचर नेम्स आल्सो, सो वी कैन लुक इट एट दिस थिंग। ये सॉर्टेड मैनर में सारे वर्ड्स मेरे शॉर्ट मतलब लोअर केस में हो गए हैं, and there are total 14 words I guess, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14, हाँ ठीक है 14 है एंड कंपैरेटिवली उसी के 14 के वैल्यूज ऊपर लिखे हैं, वही चीज यहाँ पे फिल हो रखी है. So TF-IDF बन गया, and if you want to implement TF-IDF on that same spam data set, you can quickly do all the pre-processing and everything, and then you can उसका शॉर्ट वो मतलब उसको कन्वर्ट कर लेना, प्री प्रोसेस कर लेना, देन यू कैन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट द TF-IDF एंड TF-IDF वेक्टराइजर बना सकते हो फॉर ऑल द डिफरेंट फीचर्स. टोटल देवर 382 फीचर्स एंड उनके नेम्स भी अगर प्रिंट करवाने तो करवा लो. So this is the way to get the job done around the TF-IDF. Now if I want to let's say look at the advanced lexical processing, अभी तक हमारा क्या हो रहा था कि स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले केस में हम फंस रहे थे. ठीक है, हमने स्टेमिंग कर लिया, लेमेटाइजिंग कर लिया, बट स्टिल लेमेटाइजिंग के केस में भी लिमिटेशन था कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए एंड डिक्शनरी बेसिस पे काम होगा. एंड अदर थिंग इज यहाँ पे सपोज हम कैलकटा या कोलकाता लिख रहे हैं या बेंगलुरु बेंगलोर, तो ऐसे करके अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, मतलब तो एक ही होता है राइट. प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे अब देखेंगे काम कैसे होगा. फॉर एग्जांपल इवन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रीप्रोसेसिंग स्टेप्स लॉट्स ऑफ नॉइस वाज देयर, स्पेलिंग मिस्टेक्स वर देयर, जैसे लॉल है, ऑसम, मतलब चैट में हम ऐसा लिख देते हैं. टू हैंडल सच सिचुएशंस यू विल लर्न टू आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स. तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करने एंड इनफैक्ट वी विल बी बिल्डिंग that autocorrector today in this lab, matlab in this lecture only I will be showing you the code for building the auto correction thing. And there is also one more thing that I have not covered in this advanced lexical thing, but advanced lexical processing में ये वाली चीज़ भी if you want to handle, there is something called PMI value. So ये वाली चीज़ है जैसे हांगकांग, कैल्विन क्लेन, तो आप इन सब को, हमारे जैसे थापर का नाम है, so we cannot divide it into multiple tokens, वो सिंगल टोकन में आना चाहिए. तो ऐसी वाली चीज़ें भी होती हैं, but we will be discussing in detail एक तो फोनेटिक हैशिंग एंड साउंड एक्स एल्गोरिथम के बारे में, प्लस वी विल आल्सो लुक एट द मिनिमम एडिट डिस्टेंस के, मतलब अगर स्पेल करेक्टर बनाना है तो हाउ वी शुड गो अबाउट इट एंड यूज दैट एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम टू गेट द जॉब डन. So there is a concept called canonicalization. Whatever things we have done till now, reducing the word to its base form by stemming or lemmatization, uh, it turns out that above techniques are part of something called canonicalization. Simply put, canonicalization means to reduce the word to its base form, and they are just the specific instances of it. So the root and the lemma are nothing but the base forms of the inflected word. मतलब समझ में आता है, बस इस कंसेप्ट को कैनोनिकलाइजेशन कहते हैं, वो बताना था. नाउ लेट्स लुक एट दिस. अब यहाँ पे सिमेंटिक फॉर्म्स की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल किसी के नाम में अग्रवाल आ रहा है, मतलब सुनने से पता नहीं चलता कि उसके स्पेलिंग क्या होंगे, बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ अग्रवाल. इट कैन बी AGRAWAL, इट कैन बी AGARWAL, it can be AGGAR or AGGRA. So there can be multiple variations of Agrawal. And similarly, if we compare the British spelling and American spellings, color में U नहीं आता American side पे, थिएटर में ER आएगा इन अमेरिकन स्पेलिंग, डिफेंस में SC आएगा इन अमेरिकन स्पेलिंग, ट्रैवलिंग में सिंगल L आ रहा है, टोकनाइज में S और Z का डिफरेंस है. सो जनरली अब तक जो हम पढ़ रहे थे, बेस्ड ऑन दैट वी माइट लैंड into this thing that we have made two different tokens for these two for these two. यहाँ पे भी दो बनेंगे, यहाँ पे भी दो बनेंगे, यहाँ पे भी दो बनेंगे. बट लॉजिकली देखा जाए तो चीज वही है, सेम चीज की बात हो रही है. एंड इवन दिस अग्रवाल, अगर चार वेरिएशन आ गए, इट इज नॉट राइट टू have four different tokens of this same thing. We need to do something which can help us to get the job done, जहाँ पे हम same entity को अगर हम कर भी रहे हैं, spellings might be different but we are referring to same entity, we need to reduce it to the same form. तो इसके लिए अभी क्या हो रहा है, मतलब देयर आर सम केसेस दैट कांट बी हैंडल्ड स्टेमिंग और लेमेटाइजिंग से, जैसे डिसअपीयरिंग है. तो डिसअपीयरिंग में यहाँ पे डबल एस आ गया, ये भी गलती है, या फिर यहाँ पे सिंगल पी आया, ये भी गलती है. तो हमें रिडंडेंसी खत्म करनी है, उसके लिए वी विल लुक एट द एडिट डिस्टेंस. ठीक है, और उसके थ्रू हम फोनेटिक हैशिंग की भी बात करेंगे. So to deal with the misspellings, you need to canonicalize it by correcting the spellings of the word. Then you can perform either stemming or limitation. The concept of edit distance will come into the action अगर हमने spelling correction करना है, edit distance को use करेंगे. And this thing
वही बात है कि अगर आप स्टेमिंग और लेमा कर रहे हो तो ये चीज़ अलग अलग होगा। तो इसके लिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे काम करें। ठीक है, टू डील विद द डिफरेंट स्पेलिंग्स दैट अकर ड्यू टू डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस। ऑब्वियसली ब्रिटिश वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट, है ना। तो बोलने के तरीके से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इवन इन द स्पेलिंग्स और इन द pronunciation, we can handle it through phonetic hashing. This phonetic hashing, we will look into detail now. So there are certain words which are having this kind of issue. न्यू दिल्ली को अगर हम दिल्ली को बोल रहे हैं हिंदी में, it will be called as दिल्ली। तो हमें ऐसे वाले केसेस हैंडल करने हैं जहाँ पे हम इन दोनों को सेम सिमेंटिक्स से मैच करें। दिल्ली और दिल्ली इज द सेम थिंग। तो ये चीज़ हमारे टेक्निक से हमारे टेक्स्ट को हैंडल कर पाए, ऐसा कुछ करना है। सो परफॉर्मिंग द स्टेमिंग और लेमिटेशन to these words will not help us as much because the problem of redundant tokens will be present, and hence we need to reduce all the variations to a common word. तो phonetic के basis पे काम करते हैं। phonetic hashing का देख लेते हैं, what's the definition. It is used to categorize the words that have different variants but the same phonetic characteristics, such as the same pronunciation. तो Bangalore is pronounced as Bangalore as well as Bengaluru, बात तो वही है। एंड सेम फॉर कोलकाता एंड कैलकाटा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वी नीड टू आई मीन ईच वर्ड इज असाइन टू ए हैश कोड। यहाँ पे हम हैश कोड बनाएंगे एंड दैट्स कोड फोनीम। दिस फोनीम इज the smallest unit of sound, and sound x's are the algorithms that are helpful to get the job done for this hash coding. And this is one of the algorithm, American soundex algorithm. ये चार स्टेप फॉलो करके we can easily get the job done of getting it to the hashed form. So let's say the first step is that we need to pick the first letter as it is। ठीक है, अगर flower है suppose, right, flower का अगर मैं यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट फॉर एग्जांपल मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ वॉवल्स को, तो स्टिल आई कैन मेक कि भाई ये फ्लावर की बात हो रही है। सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग दिस, तो यहाँ पे एक्चुअली दिस विल बी एल। सो दिस इज एयरप्लेन। ठीक है, ARPLN। तो दिस इज एयरप्लेन, तो मैं यहाँ पे ये एडिट कर दूंगा जो मेरे से गलती हुई है। एंड दिस इज ब्रिज। तो स्टिल वी कैन मेक सम interpretation based on looking at the characters, अगर हम उसके vowels हटा भी रहे हैं। So this is based on the rationale that English pronunciation is dependent on the first letter and the pattern of the consonants. तो first letter और consonants अगर हैं तो we can still make the sense out of it। यहाँ पे ये बात हो रही है। And then you have to do some encoding। ये encoding का rule है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। If I give you a question to do this job, तो मैं देखूंगा कि शायद मैं ये वाला एज इट इज वहां पे डाल दूंगा क्वेश्चन पेपर में, दैट यू कैन रेफर टू दिस टेबल टू गेट द जॉब डन रेदर देन रिमेंबरिंग एवरीथिंग कि किसको क्या इनकोडिंग करनी है। So after this thing, remove all the vowels and then continue till the code has this thing as I mean one letter and three numbers। टोटल चार का होना चाहिए। अगर चार का नहीं भी होता तो हम उसको पैडिंग करके जीरो लगा के चार का बना देंगे। So that's the thing that we needed to discuss about this। Just a second। हाँ, सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने फिर अपने एंड पे कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे बेंगलोर बेंगलुरु, चलो समझ में आता है कि काफ़ी सिमिलर है। मेरे को इस पे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पटियाला का अगर मैं स्पेलिंग ऐसे लिखूंगा इट विल स्टिल बी सेम और नॉट, बट इट केम आउट टू बी सेम। ये हैशिंग में कोड में यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इट ऑन योर एंड। मोहाली एंड महाली, आई मीन दिस थिंग इज काइंड ऑफ पंजाबी स्लैंग। तो जैसे महाली जाना है तो वो पंजाबी वाली जो टोन है मैंने वो चेक किया तो वो भी सेम आया यूजिंग दिस थिंग। मिसिसिपी मॉडलिंग, डबल एल सिंगल एल वाला डिफरेंस, तो ऑल दोज थिंग्स came out to be fine using this technique। You can also verify it on your end using the algorithm discussed on the previous slide। So let's look at the code। ठीक है, देखते हैं एक बार ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग भी देख लेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और वहाँ पे कोड सेम आता है कि नहीं आ रहा। एंड इन फैक्ट आई हैव आल्सो पुट ऑल दीज एग्जांपल्स एज इट इज। मोहाली महाली वाला भी मैंने वहाँ पे डाल दिया, पटियाला वाला भी डाल दिया इन द कोड। एंड लेट्स वेरीफाई दिस ऑन द coding part। Just a second। So if I look at this thing,
हम हैं साउंडेक्स वाले पे, या सो साउंडेक्स वाले में यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे एज इट इज लिख दिया जो एल्गोरिदम था। दैट डिक्शनरी मेरी ये है दैट यू वी हैव टू रिप्लेस दीज 4 कैरेक्टर्स विद 1, वी हैव टू रिप्लेस ऑल दीज विद 2, तो ऐसे करके एंड में वॉवल्स वाला भी, अगर वॉवल जाना है तो डॉट के साथ रिप्लेस कर दो, इंक्लूडिंग दिस एच डब्ल्यू एंड वाई। तो एज इट इज जो पिच एल्गो था वो यहाँ पे कर दिया। एंड इफ आई एम गिविंग इनपुट्स लाइक दिस स्टाउट एश क्राफ्ट, तो उसका ये आया कोड। तो ये रेपिटेशन हो गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अग्रवाल पे आते हैं। सो लेट्स से आई वांट टू चेक इट फॉर द दीज 4 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ अग्रवाल स्पेलिंग। तो इन सब का भी हमने फंक्शन कॉल किया तो मेरे को सेम हैश मिला। सिमिलरली पटियाला पटियाला वाला भी सेम हैश मिला, एंड मोहाली वाला भी सेम आ रहा है, मॉडलिंग वाला भी सेम आ रहा है। सो देयर इज द सिमिलैरिटी जो हैश कोडिंग के थ्रू आ रही है हमारी। So this American SoundX algorithm is working fine. We have checked the different examples. Now let's talk about edit distance. Misspellings जो है, सपोज हमारा व्हाट्सएप है, हम चैट कर रहे हैं, सो देर आर मेनी टाइम्स दैट हमारा वो ऑटो करेक्ट हो जाता है अगर हम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करते भी हैं। तो वो ऑटो करेक्ट वाला फीचर है जो, वो हमारा मिस स्पेलिंग को हम ठीक कर रहे हैं, हमें स्पेल करेक्टर बनाना है। एंड आई विल शो यू द कोड ऑफ स्पेल करेक्टर ऑल्सो इन दिस लेक्चर ओनली। सो इसकी देख लेते हैं कैसे काम करना है, एडिट डिस्टेंस कैसे काम करता है। सो एन एडिट डिस्टेंस इज द नंबर ऑफ एडिट्स दैट आर नीडेड टू कन्वर्ट द सोर्स स्ट्रिंग इनटू द टारगेट स्ट्रिंग। मतलब स्पेलिंग ठीक करने हैं तो आप कितने चेंजेस करोगे, तो उसकी बात हो रही है। एंड दिस कैन बी 3 टाइप्स: इंसर्शन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक ट्रांसपोज वाला भी होता है, वो देखेंगे, बट ये मेन है हमारे 3। इंसर्शन में हम क्या कर रहे हैं, कलर वाले में यू डाल दिया, डिलीशन वाले में इसका एक टी डिलीट कर दिया, सब्स्टिट्यूशन में ईरान इराक एन और क्यू वाला हो गया, राइट। तो एक स्वैपिंग वाला होता है, नॉट द ट्रांसपोज बट एक स्वैपिंग वाला होता है कि बहुत बार हम ना आगे पीछे करेक्टर लिख देते हैं, तो वो स्वैपिंग वाला भी इसीलिए बनाया गया था कि चलो एडिटिंग में हो जाता है आगे पीछे वर्ड टाइप करते हुए। Now suppose we want to look at these two relatively small strings, applaud and apple. Did you guess how many edits we need to get the job done? अगर मुझे इसको applaud को apple बनाना है तो मैं a को e कर दूंगा और u और d को डिलीट कर दूंगा, तो टोटल 3 चाहिए यहाँ पे, 3 एडिट ऑपरेशंस चाहिए। एंड इट वुड बिकम डिफिकल्ट अगर मेरा यही सेंटेंस और बड़ा हो जाता है, मतलब वर्ड्स और बड़े हो जाते हैं। डिलीटीरियस एंड डिलीशन, तो इसको एक बार में देख के नहीं सॉल्व कर सकते, वी नीड टू गो थ्रू सम प्रोसेस। एंड दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिदम, मतलब दिस लेवेंस्टेन एडिट डिस्टेंस नाम का एक होता है टेक्निक वेयर वी कैन इजीली get the job done of finding that distance. And in this what we are trying to do is, let's say मेरे पास acquire नाम के 2 वर्ड हैं, जिसमें एक में ACQ है, इसमें एक Q से ही है। So let's say these are the 2 words, इसका लेंथ 6 और 7 है। But now I want to make a matrix of m+1 versus n+1, उसमें मैं एक डॉट वाला भी ऐड कर रहा हूँ which is representing a dot as a null character, और उसका यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 अप टू 7, ऐसे 0 1 2 6। ठीक है, ये वाला 0 2 1 एंड 0 2 0 2 7 एंड 0 2 6 वाला तो एज इट इज समझ में आ रहा है। नाउ इफ वी वांट टू फिल दिस मैट्रिक्स, इसमें काफ़ी आसान है। मेनली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और ए का डिस्टेंस 0 है, ठीक है, बट ए और सी का क्या है, ए और सी का है वी विल लुक एट दीज 3। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो अगर मुझे ये वाली लोकेशन भरनी है, सपोज ये वाली, तो दिस कैन बी फिल्ड बाय लुकिंग एट द 3 नंबर्स, कौन कौन से, इससे एक कम इधर, इससे एक कम इधर और इससे एक कम इधर। ठीक है, तो इन तीनों का जो लोएस्ट नंबर है वो है मेरा 0, तो लोएस्ट नंबर में +1 कर दो, मिनिमम ऑफ दीज 3 +1। ये चीज़ वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे भी वैलिड है। ठीक है, इसका लोएस्ट है 1 +1 2, सिमिलरली यहाँ पे कर लेते हैं, तो इनका लोएस्ट है 1 +1 2, तो ऐसे करके पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दिया है कि भाई ऐसे ऐसे करके फिल करना है पूरा मैट्रिक्स। नाउ इससे होगा ये कि हमें मिल जाएगा इन दी एंड जो आखिरी वैल्यू होगी, दैट इज माय एडिट डिस्टेंस ऑफ एक्वायर एंड एक्वायर, ये 2 वेरिएशंस का। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक सी इंसर्ट करना था इस वाले में, तो बात बन जाएगी, राइट। सो एक ही एडिट चाहिए था।
and let's look at the code also regarding this thing. ठीक है, just a second. So अगर मैं इसका कोड देखूं, ये रहा edit वाला. So if I want to do some editing of distance, ये पूरा कोड यहाँ पे बना हुआ है, जो जो आपको पीछे बताया था वो सारा कोड यहाँ पे बना दिया है. And if I want to check the distance of CAT and CTA, तो यहाँ पे 2 आ रहा है because this will be replaced by, या तो आप देखो T को डिलीट कर दो यहाँ से and then T insert कर दो CA के बीच में, और मे बी यू कैन रिप्लेस बोथ द करेक्टर्स, A को T के साथ, T को A के साथ, तो इन एनी केस 2 ही आएगा. एंड you can also find that distance by importing this thing to this. मतलब ऊपर पूरा कोड हमने खुद बनाया है, बट इन दिस पार्ट हम फंक्शन कॉल करके कर रहे हैं. सिमिलरली एक ये भी डिस्टेंस है, एंड दिस इज एक्चुअली फॉर स्वैपिंग. अगर हम जैसे एप्पल का में स्पेल हो जाता है, LE की बजाय EL कर दिया, तो इसका भी वो चीज़ हैंडल कर लेगा. ठीक है, एंड दिस इज all about the edit distance, and let's go back to the slide. Now you have seen the another variation also. इस वाले में, सेकंड वाले में क्या था, apart from allowed 3 edit operations, चौथा swap है, जो मैं अभी पहले बता रहा था, ट्रांसपोजिशन और स्वैपिंग. क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, रिसीव के स्पेलिंग में गलती हो जाती है, RECEI कर देता है कोई, IE कर देता है, ऐसी रिलीफ है. तो बहुत बार हमें एक सिंगल वन एडिट डिस्टेंस इसको बोलते हैं, कि हम मतलब बिकॉज ऑफ स्वैपिंग हमारा वन एडिट है. अगर हम वैसे करते तो ये 2 एडिट होता, कि हम एक इंसर्ट करें, एक डिलीट कर रहे हैं ऐसे करके, बट स्वैपिंग के कारण वन एडिट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेल करेक्टर. आई विल क्विकली डिस्कस हाउ दिस स्पेल करेक्टर वर्क्स एंड आई विल शो यू द कोड कि स्पेल करेक्शन कैसे करनी है. स्पेल करेक्टर इज ए वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, बहुत ज़रूरी है. ऑटो करेक्ट वाला फीचर अच्छा होता है. एंड लेट्स से आपने कोई चैटबॉट बनाया एंड समवन हैज टाइप्ड बुक ए फ्लाइट फ्रॉम चंडीगढ़ टू बेंगलोर, उसमें RE नहीं लिखा एंड में, और जल्दी जल्दी में सर्च कर लिया, तो हमें उसको हैंडल करना है. ऐसे नहीं करना कि तेरे स्पेलिंग ही गलत है भाई, है ना. तो उसको हमें अपने आप ऑटो करेक्ट करके, डिड यू मीन करके, वो जैसे वो गूगल करता है वो वाला कुछ करेंगे. एंड पीपल हैव ऑलरेडी implemented few different kinds of variations of spell correction using even the deep learning. Now let's look at the spell correction and I will discuss the different functions of spell corrector. यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है अगले स्लाइड्स में, बट मैं एक बार पहले कोड दिखा देता हूँ आपको. ठीक है, इसमें हम नॉर्विक्स स्पेल करेक्टर यूज कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कोड रिगार्डिंग दिस वन. सो स्पेल करेक्टर में क्या करना है, मतलब ऑब्वियसली हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, बड़े सारे उसके वेरिएशन उठाने पड़ेंगे. देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस बना रहे हैं. तो वर्ड्स, अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट आता है, उसके लिए हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड ऑल द वर्ड्स. तो उसके वर्ड्स के लिए वी नीड टू यूज दिस रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी, एंड \W+ से मुझे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे उस डॉक्यूमेंट में से, और उसको हम उल्टा मतलब लोअर केस में करके आउटपुट करवाएंगे रिटर्न में. ठीक है, एंड सिमिलरली इफ वी वांट टू क्रिएट ए फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ ऑल द वर्ड्स, काउंटर वर्ड्स ओपन, तो जो ये सैम्पल स्पेल डॉट TXT है, ये वाला फाइल भी मैंने यहाँ पे डाला था, आज ही डाला है 1 आवर ago. सैम्पल स्पेल डॉट TXT, आप इसको यूज करके यहाँ पे इंपोर्ट करवा देना, एंड यू आर एक्चुअली रीडिंग एंड काउंटिंग ऑल द वर्ड्स, एंड देन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड चेयर, तो वो 135 बार आया है. एंड देन यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड द मोस्ट कॉमन वर्ड्स के भाई कौन से 10 हैं, तो मैक्सिमम ये स्टॉप वर्ड्स ही हैं जो बार बार आ रहे हैं. द सबसे ज़्यादा बार आया है, मतलब ऑफ से भी नियरली डबल है द, तो द तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो मतलब ऐसी चीज़ों को हटाने के लिए हमें स्टॉप वर्ड्स वाला काम करना है. अब यहाँ पे एक डिस्कशन हो रही है edits 1 एंड edits 2. इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं सिंगल एडिट में काम कर पाऊँ, तभी मैं उसको करेक्ट कर पाऊंगा. तो वो सिंगल एडिट के लिए यहाँ पे बता दिया कि डिलीट कर लो, इंसर्ट कर लो, रिप्लेस कर लो, ट्रांसपोज कर लो. तो चारों टाइप का यहाँ पे डिस्कशन हो रखा है. ठीक है, जो भी आप स्प्लिट कर रहे हो उसके बाद आप आगे पीछे वो थोड़ा बहुत, मतलब कोडिंग में इसको ध्यान से देखना पड़ा था, बट वी आर हैविंग 4 काइंड्स ऑफ थिंग्स. इन चारों में से कुछ भी अगर एक काम करके मेरा काम बन रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा edits 1. ठीक है, एंड edits 2 का मतलब ये है कि मेरे को एट मैक्स 2 एडिट करके मेरा ओरिजिनल वर्ड मिल रहा है.
नोन वर्ड्स का मतलब ये है दिस इज द सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर अपेयरिंग इन द ऑल वर्ड्स, मतलब ऑल वर्ड्स है जो मेरा, ऑल वर्ड्स क्या था जो मेरे डेटा सेट में से मिल रहा है, ये रहा। ओरिजिनली मैंने पूरे डेटा सेट को ऑल वर्ड्स में डाल दिया था सबका काउंटर लगा के, तो हम उसको एज ए नोन वर्ड्स कह रहे हैं कि भाई मेरी डिक्शनरी में तो ऐसा वर्ड कुछ है तो मैं उससे मैच कर लेता हूँ, अगर है एक या दो एडिट से काम बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एज इट इज सर्च करवा देंगे। पॉसिबल करेक्शंस, सो रिटर्न नॉन वर्ड, या तो एज इट इज नॉन वर्ड दे दो, या फिर सिंगल एडिट वाला दे दो, या फिर टू एडिट वाला दे दो, या फिर अगर कुछ भी नहीं है, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो गलती के साथ एज इट इज दे दो। अगर गलत स्पेलिंग है और हमें कहीं भी नहीं मिल रहा तो हम गलती के साथ ही सर्च कर देंगे, मतलब अगर हमें कुछ टाइप करना है। देन वी आर ऑल्सो लुकिंग एट दिस थिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वर्ड, कि भाई जो वर्ड बहुत बार आ रहा है तो इसका मतलब इसका चांस ज़्यादा है कि भाई ये स्पेलिंग यही होगा, फिर अगर ये बार बार यूज़ हो रहा है और एक आधी जगह गलत हो भी गया तो मैनेज हो जाएगा। देन here what what we are trying to do is we are trying to लिखना मनी था बट स्पेलिंग गलत लिख दिए, एंड वी आर ऑल्सो सर्चिंग के भाई अगर मैं एडिट्स वन एल्गोरिथम लगा रहा हूँ जो ऊपर एडिट्स वन का हमने कोड बनाया है, तो बेस्ड ऑन दिस थिंग मेरे को कितने वेरिएशन मिल रहे हैं सिंगल एडिट पे, इफ आई एम जस्ट डूइंग वन एडिट इन दिस ओरिजिनल MONNEY, तो मेरे को कौन कौन से मिल सकते हैं, तो ये सारे उसके 336 वेरिएशंस आ गए हैं, ये सब सिंगल एडिट से बन रहे हैं। ठीक है, MONNEY को सिंगल एडिट करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, और उसमें से फिर आप नोन के साथ मैच करोगे। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट इन दी एंड, मतलब सब कुछ करके प्रोबेबिलिटी देख लिया एवरीथिंग, आप एंड में वो प्रिंट करवा दोगे कि डिड यू मीन मनी, मतलब अगर स्पेलिंग में गलत भी होगा तो वो स्पेल चेक वाला जो होगा वो हमारा सब कुछ हैंडल कर लेगा, एंड हम ठीक से जैसे गूगल में सजेशंस आते हैं डिड यू मीन दिस, तो वो वाली चीज़ मैनेज कर लेंगे। सो देर आर डिफरेंट फंक्शंस जो अभी पीछे डिस्कस करें मैंने कोड में, तो जैसे फंक्शन वर्ड्स था, तो इट टोकनाइजेज एनी डॉक्यूमेंट दैट्स पास टू इट एंड यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस थिंग, मतलब ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड जो सैम्पल हमने टेक्स्ट फाइल उठाई है एक्चुअली दैट्स दिस बुक द एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स, एंड इट कैन बी फाउंड हियर, तो ये मिल जाएगा आपको। डिफरेंट फंक्शंस की बात हुई है, एडिट्स वन एडिट्स टू नोन, है ना, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। पॉसिबल करेक्शंस कितनी है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला फंक्शन का डिस्कशन हो गया यहाँ पे विद एग्जांपल यहाँ बता दिया आपको। एंड दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेट स्पेल करेक्टर मेथड, अगर मतलब वो सारी मेहनत नहीं करनी तो आप सिंपली ये कर लो, फ्रॉम स्पेल करेक्टर इंपोर्ट रेक्टिफाई एंड देन रेक्टिफाई कोई भी वर्ड है तो उसका अगर आउटपुट करोगे तो वो LEARN बिल्कुल ठीक करके एज इट इज आउटपुट दे देगा। So that's it for today. We will be continuing in the next lecture about the syntactic processing. We will start from syntactic processing in the next lecture. We have completed lexical processing now. I'm ending the session.